त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधु मधुपते अस्कृत रतिम उद्वता उद रतिम उद्वाहतात् अधा गंगे वोगम उदन्वती। O Lord of Madhu, as the Ganges forever flows to the sea without hindrance, let my attraction be constantly drawn unto you without being diverted to anyone else. Right? तो जहां पर हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, तो वो बोल रही थी कि कुंती महारानी के इधर उधर जा रही है, मेरी वृष्णि और पांडवों से मेरी अट्रैक्शन हो रही है, तो उसको काटो। और अब वो बोल रही है कि सिर्फ ओनली एक्सक्लूसिवली यू। राइट। विल रीड द purport by his divine grace, Srila Prabhupada की जय। Anyone wants to read? I can read, Prabhuji. Perfection of pure devotional service is attained when all attention is diverted towards the transcendental loving service of the Lord. To cut off the tie of all other affections does not mean complete negation of the finer elements, like affection for someone else. This is not possible. A living being, whoever he may be, must have this feeling of affection for others because this is a symptom of life. The symptom of life, such as desire, anger, hankerings, feelings of attraction, etc., cannot be annihilated. Only the objective has to be changed. Desire cannot be negated. But in devotional service, the desire is changed only for the service of the Lord, in place of desire for sense gratification. The so called affection for family, society, country, etc., consists of different phases of sense gratification. When this desire is changed for the satisfaction of the Lord, it is called devotional service. In the Bhagavad Gita, we can see that Arjuna desired not to fight with his brothers and relations just to satisfy his own personal desires. But when he heard the message of the Lord, Srimad Bhagavad Gita, he changed his decision and served the Lord. And for his doing so, he became a famous devotee of the Lord. For it is declared in all the scriptures that Arjun attained spiritual perfection by devotional service to the Lord in friendship. The fighting was there, the friendship was there. Arjuna was there and Krishna was there. But Arjuna became a different person by devotional service. Therefore, the prayers of Kunti also indicate the same categorical changes in activities. Srimati Kunti wanted to serve the Lord without diversion, and that was her prayer. This unalloyed devotion is the ultimate goal of life. Our attention is usually diverted to the service of something which is non godly or not in the program of the Lord. When the program is changed into the service of the Lord, that is to say, when the senses are purified in relation with the service of the Lord, it is called pure unalloyed devotional service. Srimati Kunti Devi wanted that perfection and prayed for it from the Lord. Her affection for the Pandavas and the Vrishnis is not out of the range of devotional service because the service of the Lord and the service of the devotees are identical. Sometimes service to the devotee is more valuable than service to the Lord. But here the affection of Kunti Devi for the Pandavas and the Vrishnis was due to family relation. This tie of affection in terms of material relation is the relation of Maya because the relations of the body or the mind are due to the influence of the external energy. Relations of the soul established in relation with the Supreme Soul are factual relations. When Kunti Devi wanted to cut off the family relation, she meant to cut off the relation of the skin. The skin relation is the cause of material bondage. The relation of the soul is the cause of freedom. This relation of the soul to the soul can be established by the via medium of the relation and the supersoul. Seeing in the darkness is not seeing, but seeing by the light of the sun means to see the sun and everything else which was unseen in the darkness. That is the way of devotional service. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। ये वाला वर्स ना बहुत ही डीप है एक्चुअली। राइट। और काफी, जैसे जैसे हम कुंती महारानी की प्रेयर्स में आगे आगे जा रहे हैं ना, वो और डीप होती जा रही है और मुश्किल होती जा रही है हमारे जैसे लोगों के लिए समझने के लिए। राइट। तो जैसे कि हमने पहले देखा था ना कि पहले कुंती महारानी बोल रही है मुझे दुख दे दो,
तो वो हम लोग नहीं उसको समझ सकते हैं, राइट। विपदा वाला जो वर्स था, उसके बाद कुंती महारानी लास्ट वर्स में बोल रही हैं कि मेरी जो लविंग टाइज हैं, जो अफेक्शनेट टाइज हैं मेरी टुवर्ड्स माय सन्स एंड माय पैटर्नल सन्स, राइट, जो पैटर्नल घर है उसकी तरफ, वो सारी काट दो। अब वो कह रही है कि सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्शन रहे, राइट। अब इसको, आई मीन आज की क्लास थोड़ी हैवी होने वाली है, ठीक है। सो और कोई भी क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हो आप, थोड़ी डीप होने वाली है, क्योंकि अब हम और जितना जितना आगे डीप जाते जाएंगे ना, उतना और ज्यादा मतलब इसमें रस भी आएगा, पर एट द सेम टाइम वो थोड़ा हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल भी करेंगी, ऐसी बातें आएंगी भागवतम में। पर हम सब लोग सोलह माला कर रहे हैं और बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, तो हमें इतना समझने में तकलीफ नहीं होगी, राइट। पर ये चीज अगर किसी और आप लेमैन के साथ नहीं कर सकते हो, ठीक है, जाके कोई सड़क पे चल रहा हो या जो भक्ति वृक्षा नया नया खुला हो, उसमें जाके आप ये वाला वर्स नहीं बोल सकते हो, ठीक है। वो कहेगा यार भाग जाओ तुम यहाँ से, तुम हमारी फैमिली की अफेक्शन काटने आ गए हो तुम, ठीक है। सो बट इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आई थिंक हम सबको सबको हो गए हैं 4-5 साल भक्ति करते हुए, तो हम इसको एटलीस्ट समझ तो पाएंगे। अगर कर ना नहीं भी पा रहे हैं या कर नहीं भी पाएंगे, पर एटलीस्ट समझ हम जरूर पाएंगे, राइट। अब वो क्या बोल रही है, रतिम, रति, रति का मतलब होता है बहुत ज्यादा अफेक्शन, मतलब रति को रति एक्चुअली जो क्यूपिड है ना, क्यूपिड कामदेव, उसकी वाइफ का नाम रति है। तो रति मीन्स, रति को कंपेयर किया जाता है स्टेज ऑफ भाव, भाव भक्ति जो कर रहे थे ना, उस स्टेज पे वेरी वेरी ओवरवेलमिंग अट्रैक्शन। और कृष्णा क्या बोल रही है कि मेरी वो अट्रैक्शन किसके साथ होनी चाहिए, आपके साथ, राइट। जैसे कि गंगा कितनी कितनी वेग से वो किस में जाके मिलती है, समंदर में, ऐसे ही वो इधर उधर नहीं चली जाती कहीं, सीधा वो समंदर में जाती है, राइट। तो ऐसे ही कृष्ण वो कह रही हैं कुंती महारानी कि मेरी रति जो है, मेरी जो अट्रैक्शन है, वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली अपने में कर दो। बस पहले तो उन्होंने बोला था कि उनसे काट दो, इनसे काट दो, फिर वो बोल रहे हैं फॉरगेट इट, मेरी सिर्फ अट्रैक्शन आप में होनी चाहिए। आई डोंट वांट डाइवर्ट हियर एंड देयर, ठीक है। तुम्ही त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव त्वमेव माता पिता त्वमेव एवरीथिंग, ओनली यू, ठीक है। तो हमारे साथ क्या होता है कि हमें लगता है कि यार वाई कृष्णा, और हम आए भी तभी हैं इस वर्ल्ड में क्योंकि हमें लगता था कि वाई कृष्णा इज द एंजॉयर, आई शुड बी द एंजॉयर। अब खाना जो है वो पेट खाता है, ठीक है? पर बॉडी नरिशमेंट जो मिलती है वो पूरी बॉडी को मिलती है। ऐसे ही जब हम कृष्णा को सेटिस्फाई करेंगे, सबकी इंजॉयमेंट, सबकी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी उसमें। पर हमें चाहिए नो, हमें तो डायरेक्ट चाहिए, इनडायरेक्ट इंजॉयमेंट नहीं चाहिए हमें, वी वांट टू बी द डायरेक्ट इंजॉयर। हम डाइल्यूटेड इंजॉयमेंट क्यों ले भाई। तो वही चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें यहाँ पर आके सिखाया है, दिखाया है, डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि कैसे भक्ति करनी चाहिए बिना डाइल्यूशन के। और सेम चीज कुंती महारानी भी सिखा रही है कि सिर्फ कृष्णा को लव करना चाहिए। बट होता क्या है, हमारी जो भक्ति है वो क्या है, मिश्र भक्ति है, नॉट प्योर भक्ति। और वो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, परफेक्शन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विसेज अटेन्ड व्हेन ऑल अटेंशन इज डाइवर्टेड टुवर्ड्स द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। सिर्फ कृष्ण। हमारी भक्ति कैसी है कि अच्छा, हम जो भक्ति करते हैं ना, मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ पहले। हम दो तरह की गलतियां करते हैं। हम एक तो हम गलती करते हैं कि बस कृष्णा ही सब कुछ है, और डिवोटीज और ये फैमिलीज टाइज ये कुछ नहीं, ये दे डोंट एग्जिस्ट, ऐसे लोग हैं। उसमें क्या होता है, हमारा हार्ट जो है वो इतना हार्ड हो जाता है ना, कि हम इतने ज्यादा कोल्ड हो जाते हैं कि हम दूसरे लोग जो आसपास हैं, जो और डिवोटीज हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उन सबके साथ हम अपनी टाइज काटने लग जाते हैं। जैसा कि कुंती महारानी ने कहा था लास्ट वर्स में ना कि मेरी टाइज काट दो, ठीक है। और सिंपली मैं तो कृष्णा को ही अट्रैक्टेड हूँ, बट एक्चुअली इट इज आर्टिफिशियल, इट इज नॉट कनेक्शन टू कृष्णा, इट इज आर्टिफिशियल। और ये कौन से लोग करते हैं, ज्ञानी, जो ज्ञानी ज्ञान योग जो है, जो हमने भगवत गीता में अभी हम पढ़ेंगे, ज्ञान योग में क्या होता है कि द अटेंशन द फोकस इज ऑन नॉलेज,
और न्यानीज कहाँ जाते हैं? ब्रह्म ज्योति में। ये इम्पर्सनल चीज होने लग जाती है, हमें पता नहीं चलता। हम तो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम तो कृष्णा भक्त हैं। हम भक्त नहीं हैं, हमें भक्त का आभास हो रहा है कि हम भक्ति कर रहे हैं, बट एक्चुअली दिस इज नॉट भक्ति, राइट? इट इज ज्ञान मिश्र भक्ति। हमें लगता है कृष्णा ही सुप्रीम है, बाकी सब लोग जाएं भाड़ में, इजंट इट? तो और हम क्या सोचने लग जाते हैं कि यार वैसे भी फैमिली से क्या ही मिलता है हमें, और विच इज ट्रू टू एन एक्सटेंट एज वेल, राइट? कि वो जो फीलिंग्स आती हैं फैमिली के साथ, वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही हंकी डोरी चल रहा है जी। वो ट्रबलसम होती हैं, इजंट इट? हमें सारा प्लेजर हमारी फैमिली से मिल जाता है? नहीं मिलता ना, पेन भी मिलती है अपनी फैमिली से, इजंट इट? नहीं तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों हो, या डिवोर्सेस, ये डिवोर्स इतने सारे क्यों हो? क्योंकि हमें जो हमारे फैमिली मेंबर्स से जो भी हम सब कुछ पाना चाहते हैं वो नहीं मिलता है, isn't it? कुछ ना कुछ वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं हम। कोई भी नहीं होता है, मतलब 100% सेटिस्फाई आपको करती है आपकी फैमिली? नहीं करती। बच्चे को बोलो वो सुनता नहीं, बीवी को बोलो वो सुनती नहीं, पति को बोलो वो सुनता नहीं है, ठीक है? हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है, जो भी आता है सुना के चला जाता है, isn't it? तो हमें क्या लगता है, यार छोड़ो, इन सबको छोड़ दो और अलग रहो, बढ़िया एकदम डाइवोर्स ले लो। तो उससे क्या होगा? जो मेरा दिल करेगा मैं खाऊंगा, जब आऊंगा मैं अपनी मर्जी का मालिक बन जाऊंगा, isn't it? तो अभी मेरा एक फ्रेंड है, पंजाबी है, उसने डिवोर्स लिया। तो अ, बड़ा खुश है, कहता जी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं आता हूँ ऑफिस से, अपना खाना बनाता हूँ और अपना एक दो पैग लगाता हूँ, साथ में मैं खाना बनाता हूँ और अपनी मर्जी से खाता हूँ, नेटफ्लिक्स देखता हूँ, जब सोना होता है सोता हूँ, जब उठना होगा उठता हूँ। कोई रोक टोक नहीं है मेरे को, बहुत सुकून भरी जिंदगी है। बच्चा आ जाता है, मेरे को मिल जाता है वीकेंड पे, हम उसके साथ घूमने चला जाता हूँ। तो मैंने कहा यार लाइफ पार्टनर तो चाहिए, तो चल ठीक है, उससे नहीं बन रही तो कोई और ढूंढ ले। कहता नहीं नहीं नहीं, बस बढ़िया है ऐसे ही। बट अभी बात करी थोड़े दिन पहले, तो वो सब तो बढ़िया है कि वो फ्री फ्री वाली फीलिंग आती है, फ्री बर्ड वाली। बट एट द सेम टाइम ये सेइंग यार अच्छा अब कोई ढूंढ ही लेता हूँ फिर। होता क्या है इस प्रॉब्लम में, ज्ञान योगा में क्या होता है कि थोड़ी देर बाद बंदा क्या होता है, लोनली फील करने लग जाता है। क्योंकि तुमने ये कट तो कर लिया अपने आप को लोगों से, ठीक है, अपनी फैमिली से, बट जुड़े कहाँ हो तुम? जुड़ा तो कृष्णा के साथ तो कोई कनेक्शन है नहीं। तो तुम तुम पत्थर जैसे, पत्थर दिल बोलते हैं ना, पत्थर दिल बन जाते हो। तो उससे होता क्या है, तुम भोग, इसको भोग त्याग फिलोसफी बोलते हैं। भोगा और फिर त्याग दिया, नहीं नहीं यार छोड़ो। क्या एक, तभी तो ये गोरे क्या करते हैं, एक पार्टनर क्यों बदलते रहते हैं? एक पार्टनर भोग भोग किया, अरे बाद में नहीं बनी, छोड़ दिया, त्याग। फिर दूसरा पकड़ा, दूसरा छोड़ दिया, राइट? ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंड्स एक बदला दूसरा छोड़ दिया, रिलेटिव्स, किसी के साथ बनती नहीं है हमारी, है ना? क्यों नहीं बनती? तो हमें फिर हम क्या करते हैं, रिनाउंस करते हैं। जब हम रिनाउंस करते हैं तो हम देन वील फील लोनली, अकेलापन फील होता है। फिर हम वापस आ जाते हैं, इजंट इट? तो हमें क्या लगता है, हम तो भक्ति कर रहे हैं, कृष्णा की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो भक्ति नहीं है भाई, उसको समझना चाहिए। दिस इज डेमोनिक। जो ब्रह्म ज्योति में जो ये इम्पर्सनलिज्म है, ये तो राक्षसों के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। राक्षस कैसे होता है, उनकी उनका उद्धार कैसे होता है? कृष्णा उनको मारते हैं और वो क्या होता है, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं। शिशुपाल कैसे हुआ था, उनको विलीन हो गया। और जितने भी मरते हैं महाभारत में, जितने लोग मरे हैं वो सब कहाँ गए हैं, ब्रह्म ज्योति में उनकी विलीन हो गए, isn't it? So this is not a very good proposition. अब फिर क्या होता है, फिर बंदा एकदम दूसरे एक्सट्रीम पे चला जाता है। मैं कहता अरे नहीं नहीं यार, फैमिली सब कुछ है भाई, सर्व, आई विल सर्व, मैं अपने बच्चों के लिए काम करूंगा, मैं अपनी बीवी को खुश रखूंगा। हाँ, तो मोड ऑफ पैशन में आके वो बहुत काम करता है, बहुत काम करता रहता है अपनी फैमिली के लिए। और उसको वो समझ लेता है कि बस इनकी सेवा कर रहा हूं मैं, या डिवोटीज की सेवा कर रहा हूं, तो यही यही सब कुछ है। ठीक है, मानव सेवा, माधव सेवा। जबकि उसमें स्पिरिचुअलिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। पर वो, उसको ऐसा आभास होता है, इसको बोलते हैं भक्ति आभास। उसको ऐसा आभास होता है कि वो बहुत बढ़िया कर रहा है एकदम, ठीक है, सब कुछ रिनाउंस करके अपना, सॉरी, रिनाउंस
तो वहां से तो गिर गया, और क्या करने लग गया, ये चैरिटी, एनजीओज, ये जितनी भी नन्स हैं, नन्स ये क्या क्या होती हैं, ये वैसे तो रिनाउंस्ड होती हैं, ठीक है, शादी नहीं करती हैं, और वो सब कुछ छोड़ा होता है, बट एक्चुअल में क्या कर रही होती हैं, एक्चुअल में दे आर सर्विंग अदर पीपल, राइट, मदर टेरेसा और ये सब चैरिटी एनजीओ, बस ट्राई टू बी अ गुड पर्सन। तो ये जब वहां से गिरते हैं तो ये सब काम करने लग जाते हैं। अब होता क्या है, वहां पे सेटिस्फाई नहीं हुए, अकेलापन हुआ, यहाँ आ गए, लोगों की सेवा करने लग गए। अब लोगों की सेवा करने के बाद वो वहां से क्या चाहते हैं, अप्रिसिएशन, अरे देखो कितना अच्छा काम करता है, कितना सेवा भाव है प्रभु जी में। हाँ, प्रभु जी यही सुनना तो चाहते हैं, कि कोई मुझे बोले तो सही, कब से तो मैं, मेरे कान तरस रहे थे ये सुनने के लिए, कि कोई बोले प्रभु जी आपका सेवा भाव बहुत अच्छा है, इजंट इट? तो और जब तक तो वो सुन रहा है, कानों में पड़ रहा है, तब तक तो बढ़िया है। जिस दिन वो नहीं पड़ा, उस दिन क्या होगा, उस दिन फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इजंट इट? ऐसा कैसे, और मैंने इतना किया इन लोगों के लिए, और इन्होंने मेरे को पूछे, मेरे को रिस्पेक्ट तक नहीं दी, हरे कृष्णा तक नहीं बुलाया। ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। क्या कह रहे हो? फॉल्स ईगो आ जाएगा। हाँ एग्जैक्टली exactly, क्योंकि वो जो मोटिवेटेड थी, जो सो कॉल्ड भक्ति थी ना, वो कर्म मिश्र भक्ति थी वो। पहले हमने ज्ञान मिश्र देखी, उससे अकेलापन हुआ, वहां से उतर के नीचे आए, कर्म करने लगे, तो कर्म मिश्र भक्ति हो गई। मतलब शेल्टर इधर उधर ढूंढ रहे, जस्ट लाइक के एक मोबाइल बैटरी है, हम उस मोबाइल, अब अच्छा वो क्यों नहीं मिलती, दूसरी तरह से सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं मिलती, क्योंकि हम जो जीव है ना, उन जीवों से हम वो चाह रहे हैं सेटिस्फेक्शन लेना। अरे भाई, जीव तुम्हें, एक लिविंग एंटिटी तुम्हें कैसे सेटिस्फेक्शन दे सकती है, इजंट इट? उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है, किसी और बंदे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो तुम्हें सेटिस्फाई कर सके, ठीक है? जैसे कि एक मोबाइल बैटरी में एग्जांपल दे रहा था, कि जैसे एक मोबाइल बैटरी है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो पूरे घर को चला दे, पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को पूरी कर ले। इसीलिए ये जो ज्ञान और कर्म मिश्र भक्ति है, ये क्या है, कंटेमिनेटेड भक्ति है। तभी वो उसमें नेक्टर ऑफ डिवोशन में आता है ना, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु शीलनम भक्तिर उत्तमा। राइट, ज्ञान और कर्म के साथ जो मिक्स हुई हुई भक्ति है, दैट इज नॉट ट्रू भक्ति। द प्योर डिवोशनल सर्विस इज अन्य अभिलाषिता शून्यम, और कोई डिजायर नहीं होनी चाहिए, बट जस्ट टू सेटिस्फाई कृष्णा, सम सिद्धि हरितोषणम। राइट, तो तभी कुंती महारानी क्या बोल रही है लास्ट वर्स में, कि डिटैच मी फ्रॉम द मटेरियल रिलेटिव्स, ये जितने भी जो मेरे रिलेटिव्स हैं, पांडुज और वृष्णीज, उनसे मेरे को अलग करो। और 15th चैप्टर भगवत गीता में इसकी काफी अच्छी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, भगवान कृष्ण ने, कि जो मटेरियल अटैचमेंट होती है, ये जो बेनियन ट्री की एग्जांपल दी है ना, उसमें उन्होंने बताया कि इस बेनियन ट्री को जो नरिश करती है ना, उल्टा जो बेनियन ट्री लटका हुआ है, इसको जो नरिश करता है, वो कौन करता है, 5 तरह की अटैचमेंट्स। वो 5 तरह की कौन सी अटैचमेंट्स हैं, एक तो है 5 तरह की अटैचमेंट्स हैं। वन इज अटैचमेंट टू योर ओन बॉडी, मेरी अपनी बॉडी के साथ जो अटैचमेंट है ना, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है उसका, कि वी आर नॉट द सोल, वी आर द बॉडी। और हमें हमें क्या हो जाता है, कि हमारे स्किल्स, हमारा टैलेंट, इन सब से। दूसरी तरह की अटैचमेंट कौन सी है, हमारी फैमिली मेंबर्स के साथ अटैचमेंट। ये जो बच्चा है जो मेरे से निकला है, उसके साथ बहुत फर्म अटैचमेंट हो जाती है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, राइट, हस्बैंड वाइफ मदर फादर, ये सब उसमें। और पेरेंट्स क्या होते हैं, अपने बच्चे को पहचान लेते हैं वो, हजारों हजारों बच्चों, और नॉट ओनली ह्यूमंस, ये टेंडेंसी मैं एक नेशनल ज्योग्राफिक पे देखा था बहुत देर पहले। एक वहाँ पे पता नहीं पेंगुइन थे या सील्स थी, वो जो पेंगुइन्स हैं या सील्स हैं, जो वो पानी में जाती हैं, और उनके बच्चे जो है ना, वो बर्फीले पानी में जाती हैं, और वो बाहर खड़े रहते हैं, कि वहां से हमारी माँ वो मछली पकड़ के लाएगी। और उसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेंगुइन्स के बच्चे होते हैं, और उनमें से
हर एक माँ निकाल के आती है, निकल के आती है, तो मछली पकड़ी होती है वो अपने बच्चे को जाके ही पकड़ती है, वो तुम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते। बट माँ को पता होता है कि कौन सा उसका बच्चा है। तो ये होती है अटैचमेंट। ये वो होती है बिकॉज ऑफ दिस अगेन, बॉडीली कनेक्शन की वजह से, राइट। फिर तीसरी तरह की अटैचमेंट कौन सी है? जो हमारे पोजेशंस हैं, हमारा घर, हमारा गार्डन, हमारे फर्नीचर, ये मेरा, ये मेरी गाड़ी, ये, राइट। चौथी तरह की कौन सी अटैचमेंट है? नॉलेज, नॉलेज ऑफ द मटेरियल साइंस, राइट। जो हमारी मटेरियल साइंस है उसकी नॉलेज, कि हमें देखो मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ, मेरे को बहुत, और ये नेवर एंडिंग है बंदा, और हर रोज बैठ के वो पढ़ता है, गूगल न्यूज़ देखता है कि कल को मैं बोल सकूं जाके। इसकी भी अटैचमेंट है। फिफ्थ अटैचमेंट है जो पोम्पस रिचुअल्स करते हैं हम, ठीक है, हवन कर दिया, कर्म कांड कर दिया, सप्ताह, भागवत सप्ताह इंडिया में लोग रखवाते हैं, वो रखवा दिया। तो वो बोलते हैं भगवत गीता में 15 चैप्टर में कि ये जो ये जो 5 तरह की अटैचमेंट है ये हमें बांध के रखती है इस मटेरियल वर्ल्ड से। बर्थ आफ्टर बर्थ, बर्थ आफ्टर बर्थ हम क्या करते रहते हैं? इस ट्री को नरिश करते रहते हैं, राइट। अब क्वेश्चन आता है कि फिर हम हाँ जी माता जी। प्रभु जी, आपने बोला ये फिफ्थ जो भागवत सप्ताह करवाना उससे अटैचमेंट, वो मतलब वो गलत कैसे? हाँ मतलब वो उस कैसे? हाँ, हम्म। गुड क्वेश्चन। उसमें क्या होता है कि जो लोग करवाते हैं ना, वो दे आर वेरी पायस, वो पायस लोग होते हैं। दे हैव नथिंग टू डू। इंडिया में जो भागवत सप्ताह लगता है ना, जो प्रोफेशनल्स प्रोफेशनल्स करवाते हैं, अच्छा। इट हैज नथिंग टू डू। वो पैसा लेते हैं 4-5 लाख, आज आजकल तो पता नहीं 10 लाख रेट हो गया होगा। हम्म। वो क्या करते हैं? पैसा लेते हैं और आके प्रोफेशनल्स आते हैं, वो आके वो कथा कर जाते हैं। और उससे क्या होता है, पूरी कम्युनिटी में, पूरे मोहल्ले में फैल जाता है कि हाँ भाई, निशांत तो बहुत बढ़िया पायस आदमी है, बहुत रिलीजियस आदमी है, चाहे वो पीठ पीछे कुछ भी कर रहा हो। और जो वो दूसरा बंदा भी जो भागवत भी दे रहा है, वो भी टेंट के पीछे बाद में जाके सुट्टा मार रहा है। हम्म। तो प्रभुपाद बोलते हैं इट्स अ क्राइम, अगर आप भागवतम बोलने के पैसे लेते हो तो ये क्राइम है। हम्म। इट विल नॉट बी ट्रांसफॉर्मेशनल एट ऑल, इट विल बी ओनली इंफॉर्मेशन। वो सारे वो हम्म। साज, सब साजों के साथ वो करेंगे, और बीच में गाना गाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत लगेगा सुनने में, बहुत अच्छा लगेगा। वही, तभी तो बिकता है वो। राइट। It's like an other entertainment source, but with some spiritual angle to it. हम्म। Does that make sense? गॉट इट। मतलब या गॉट इट। इट्स अ कर्म, काइंड ऑफ ए कर्म कांड टाइप थिंग, और हाँ। अपने आप को पायस दिखाने के लिए कम्युनिटी में, कि देखो राइट। मैं कितना पायस हूँ, right? थैंक यू। फिर अब इसको काट कैसे सकते हैं? अब 15 चैप्टर में ही भगवान बता रहे हैं कि इसको कैसे काट सकते हो। The real form of this tree cannot be perceived in this world. No one can understand where it ends and where it begins and where its foundation is. इतनी deep rooted है ये. But with the determination, one must cut down this strongly rooted tree with the weapon of detachment. Detachment से हम इसको काट सकते हैं। Thereafter, one must seek that place from which having gone one never returns. अब एक बार हम यहाँ पर फंसे हैं, वंस बिटन ट्वाइस शाई। एक बार हमारा दूध का जला छाछ को फूक मार के पीता है। तो वो चीज है, एक बार हम यहाँ से निकल गए, वन नेवर रिटर्न्स, एंड देयर सरेंडर टू दैट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, फ्रॉम whom everything began and from whom everything has extended since time immemorial। तो तुम उसके बाद पहले डिटैच करोगे, फिर कृष्णा के साथ अटैच करोगे, देन यू विल नॉट रिटर्न फ्रॉम दैट प्लेस। दिस इज व्हाट ही सेइंग। This is how you can cut the rope of attachment for that with that tree, उस tree के लिए, right? तो अब अटैचमेंट, ये डिटैचमेंट लाना या अटैचमेंट कटिंग, इट्स नॉट दैट इजी। तो एक बार शिला प्रभुपाद से किसी डिसाइपल ने पूछा कि ये तो बहुत मुश्किल है प्रभु, ये डिटैचमेंट को कल्टीवेट करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो बताओ इसका, हमें वो बताओ, क्या सॉल्यूशन, कैसे कैसे हम डिटैचमेंट लाएं? तो प्रभुपाद ने कहा इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, अगर आप देखा जाए तो इट्स वेरी सिंपल। हाउ हाउ इट इज सिंपल के इसमें वी नो, अगर, सॉरी, अगर हमें तत्व पता है कि दिस वर्ल्ड बिलोंग्स टू हु? कृष्णा। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा।
जब हमें ये पता चल जाएगा, जब इस फैक्ट को पता चल, धीरे धीरे अपनी लाइफ में उतारेंगे ना कि ये कुछ मेरा है ही नहीं, हम क्या लेके आए थे, तो देन इट मेक्स इजी। लाइफ क्या है? स्मॉल, वेरी स्मॉल फ्लैश इन द होल एटर्निटी। पूरी, अगर मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट लूं, अगर हम ऐसा सोचेंगे, दैट मेक्स अवर लाइफ इजी, दैट बिकम देन इट बिकम्स इजी टू डिटैच। अभी और भी रीजंस मैं बताऊंगा अभी, ठीक है? तो और एक और चीज, कि अगर हम सबसे डिटैच होके कृष्णा का शेल्टर लेंगे, देन ऑल्सो इट बिकम्स इजी। और कृष्णा को ये पसंद है, कृष्णा डिलाइट्स इन टेकिंग केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन। जैसे हम अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करना या उनके लिए टॉयज लेना में अब पसंद, हमें भी अच्छा लगता है ना। कई बार अविराज नहीं भी बोलता टॉय लेने के लिए, मैं तब भी उठा लाता हूँ। और फिर मैं बाद में अपने आप को बोल रहा हूँ क्यों किया मैंने ऐसे, बट स्टिल आउट ऑफ अफेक्शन और आउट ऑफ लव एज अ पेरेंट, वी डू दैट, राइट? हमें बच्चों के लिए अच्छा लगता है शॉप करना। सेम वे कृष्णा लाइक्स टू डू दैट। पर अब सोचो, आप बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हो और बच्चा बोले नहीं 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 सॉरी, मैं अपने पर अपना सेपरेट अरेंजमेंट कर लूंगा, आपकी जरूरत नहीं है, थैंक यू, थैंक्स बट नो थैंक्स। तो कैसा फील होगा? तो सेम वे कृष्णा को भी फील हो रहा है। कृष्णा हमारे लिए करना चाहते हैं, बट हम किधर हैं? अटैच्ड, इधर उधर इधर उधर इधर उधर अटैच्ड है। हम कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, हम अपने सेपरेट अरेंजमेंट्स कर लेंगे, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। और कृष्णा ने हमें कोटा दे रखा है ऑलरेडी, कोटा भी असाइंड है कि बेटा इतना तो तेरे को मिलना ही मिलना है। फिर भी हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मुझे और चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। देन कृष्णा बोलते हैं कि ओके, फाइन, ठीक है। तब भी उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरा फ्रेंड है, उसका उसकी बेटी अभी ना 18 साल की हुई, यूनिवर्सिटी में जाने लगी। और यूनिवर्सिटी के साथ साथ उसने जॉब कर रही थी, तो उसने उसको वहीं पर ही जॉब लगवा दिया, तो अच्छी जॉब लग गई उसकी, मेलबर्न में ही। फिर उसने क्या किया, अ, उसने बोला कि मेरे को और अच्छी जॉब मिल रही है। उससे पहले एक्चुअली क्या हुआ, तो उसने बहुत टाइम लगाया, उस पर बहुत टाइम स्पेंड किया। उसको एक, मैंने शायद पहले भी बताया होगा, उसको गोल्फ की प्लेयर बनाने में। एंड शी बिकेम द विक्टोरियाज बेस्ट गोल्फ प्लेयर अंडर 18, एमेच्योर में। तो उसके बाद उसकी जॉब, यहाँ यूनिवर्सिटी में जॉब लग गई, तो शी सेड आई डोंट वांट प्ले। और उस बंदे ने एवरी डे ही स्पेंट 4 आवर्स इन कल्टिवेटिंग हर। हाँ, उसके बाद उसने बोला मैं नहीं करूँगी, एंड ही गॉट अ हार्ट अटैक। ही सर्वाइव्ड इट समहाउ। देन व्हाट हैपेंड, अब जॉब कर रही है, चलो ठीक है, उसने उसने एडमिट कर लिया कि चलो ठीक है, 4-5 हज़ार की जॉब में खुश है, इतना अच्छा करियर छोड़ के। ही सेड ओके। अब उसने क्या किया, वो कहती मैं जा रही हूँ आगे ब्रिस्बेन, आई डोंट वांट स्टे हियर, आई हैव माई ओन इंडिपेंडेंट प्लान्स। उसने बोला कि यहाँ पर मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं, सब कुछ है, तो यहाँ रह ले, मेरे मेरे घर है यहीं पर मेलबर्न में ही, एक और घर है, तो उसमें रह ले। ही सेड नो, मेरे को वहाँ पे 20,000 ज़्यादा मिल रहा है, और मेरे पास सेविंग्स है मेरी, तो आई गो देयर। शी लेफ्ट। और अभी फिर उसके मुझे बता रहा था कि पेन दोबारा स्टार्ट हुई है हार्ट में, ही इज गोइंग टू स्पेशलिस्ट। सो दिस इज मटेरियल वर्ल्ड, एंड दिस इज हाउ वी आर ऑल्सो बिहेविंग। हम भी कृष्णा के हार्ट में पेन दे रहे हैं अपने इंडिपेंडेंट प्लान्स बना के, जबकि कृष्णा कह रहे हैं वैकुंठा इज वेटिंग फॉर यू, गोलोक वृंदावन इज वेटिंग फॉर यू। वी सेड नो 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 नो, हमें पॉइंट कुक में हमारा 500 स्क्वायर मीटर का घर है, एक सुंदर सा बैकयार्ड है, वी आर हैप्पी हियर, एंड वी वांट टू मेक मोर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हियर, right? So this is the problem. But if we know that yes, Krishna is actually waiting and he delights in taking care of his children, then we will have detachment from this place, right? तो कुंती महारानी यहाँ पर बात कर रही है बहुत हाई डिग्री की, राइट, कि डिटैचमेंट फ्रॉम द लिविंग एंटिटीज लाइक पांडुज एंड वृष्णीज, जो कि बहुत डीप रूटेड होती हैं। जैसे मैंने बोला कि फैमिली अफेक्शन आर वेरी डीप रूटेड, उनको तुम, यहाँ पर हम जितने लोग बैठे हैं, हम में से कितना कौन बोल सकता है कि हाँ भाई मैं रेडी हूँ जाने के लिए, कृष्णा आए हैं, डोर पे बेल बजे, आओ निशान चले, नाम संकीर्तन प्रभु आओ चले,
सॉरी प्रभु, अभी अभी तो थोड़ा रुक जाओ ना, अभी थोड़े ना मैंने बोला है। अभी रुको। अभी थोड़ा रुको, आता हूं मैं। isn't it? तो हम ही जाने को रेडी नहीं है। अगर वो रेडी हों भी तो हम ही जाने को रेडी। isn't it? प्रभु आवाज नहीं आई आपकी। बच्चों का क्या होगा? हाँ। सबसे पहले वो दिमाग में आएगा। मेरी इतनी मॉर्टगेज पड़ी है प्रभु, कैसे अभी कैसे आ जाऊं कृष्णा, रुक जाओ। isn't it? सो दिस इज द प्रॉब्लम। तभी तो कृष्णा ने दुर्योधन और अर्जुन को पूछा, मी और माई नारायणी सेना। दुर्योधन सब ने, दुर्योधन जैसे लोगों ने, हम जैसे लोगों ने बोला हाँ नारायणी सेना आने दो। सिर्फ अर्जुन था जिसने बोला कि नहीं, ओनली कृष्णा। नारायणी सेना अपने आप ही आ जाएगी यार, कृष्णा आ गए तो। ये बात फेथ नहीं है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है। कृष्णा ने कर्ण को भी पूछा था कि मैं चाहिए कि दुर्योधन, उसने भी दुर्योधन चूज किया। सो पीपल मेक रॉन्ग चॉइसेस। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर अटैचमेंट। उनकी जो मटेरियल अटैचमेंट है टुवर्ड्स देयर फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स इज मोर देन अटैचमेंट टू कृष्णा। दैट इज द प्रॉब्लम। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ कृष्णा। प्रभु, मुझे ना थोड़ा सा इस पॉइंट पे ना थोड़ा डाउट रहता है हम्म। कि हाँ प्रभु, लाइक अगर अभी कृष्णा बोले कि चलो हमारे साथ, हम्म। एंड वी से कि नहीं अभी हमारी, प्रभु मॉर्गेज वगैरह को छोड़ दो, बट इफ हम्म। वी थिंक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ। तो इज दिस अ गुड थिंग कि नहीं नहीं हम बोल दें कि नहीं हम जा रहे हैं, या हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मोर प्रायोरिटी दें? व्हाट यू करेक्ट। थिंक प्रभु? करेक्ट, इसी का आंसर बहुत डिटेल में मैं इसका आंसर बताऊंगा। मैंने बहुत अच्छी क्लास सुनी थी, मैं आपको क्लास भी भेजूंगा उर्मिला माता जी की। उर्मिला माता जी की अगर आपने अभी टेम्पल में भी क्लासेस सुनी हो ना, शी इज टू गुड। बहुत ज्यादा डीप जाती है वो। और मैंने उन्हीं का ही लेक्चर सुना था अभी, तो मैं बताता हूँ उन्होंने उन्होंने क्या आंसर दिया। बहुत डिटेल में आंसर दिया उन्होंने। विल कम टू इट माता जी, विल एंड ऑफ द क्लास हम देखेंगे, अगर नहीं आंसर होगा तो विल विल डिस्कस मोर ऑन इट। ठीक है। नो, नो वरीज प्रभु। है ना। तो अर्जुन की एग्जांपल से ही इसको समझते हैं, मैं ट्राई करता हूँ एक इलेबोरेट आंसर देने का। अब अर्जुन ने क्या कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरी पर्सनल डिजायर्स थी, उसकी उसकी अटैचमेंट थी टुवर्ड्स कृष्णा, टुवर्ड्स द्रोणाचार्य एंड भीष्मा। राइट। पर कृष्णा ने फिर भगवत गीता बोली पूरी, उसके बाद अर्जुन वॉज रेडी। सेम वे हमने क्या बोला कि हमारी अटैचमेंट है टुवर्ड्स माय फैमिली मेंबर्स, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं टुवर्ड्स माय फैमिली मेंबर्स, एंड आई एम नॉट गोना डू दैट। नाउ कृष्णा इज स्पीकिंग भगवत गीता, देन विल सी कि डज इट मेक सेंस फॉर अस और नॉट। राइट। तो एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हमारी जो भी डिजायर्स होती है ना, हमारी जैसे फैमिली मान लो, उसमें हमें फैमिली से लेना देना खास होता नहीं है। पर वो हमारी इल्यूजन, हम इल्यूजन है वो हमारी, कि हमारी फैमिली है ये। बट होता क्या है? वी वांट टू टेक फ्रॉम फैमिली रादर देन गिविंग टू फैमिली। हर चीज में आई आता है। आई एम इन द सेंटर, आई विल बी हैप्पी, पीपल आर मेंट टू सर्व मी। ठीक है। मैं मेरे लिए, मेरे को उसने ऐसे बोला, मेरे को मेरे पति ने ऐसा बोल दिया तो ऐसा हो गया, मेरे को मेरी वाइफ मेरे बच्चे ने ऐसा बोल दिया तो मैं ऐसा हूँ। एवरी, हर एक चीज में सेंटर में कौन हूं मैं? जो कि क्या है? इल्यूजन। सेंटर, फैमिली के सेंटर में मैं हूँ, कम्युनिटी के सेंटर में भी मैं अपने बारे में ही सोचता हूँ कि कम्युनिटी में भी मैं ही हूँ, कांग्रेगेशन में भी मैं ही सेंटर में हूँ। कंट्री के सेंटर में कौन है? प्रधानमंत्री, उसको भी ये लगता है कि मैं सेंटर में हूँ। बट क्या और लोगों को लगता है? क्या तुम्हारी फैमिली को लगता है कि तुम हो सेंटर में? नहीं लगता। यहाँ का विक्टोरिया का गवर्नर कौन है? मुझे तो नाम भी नहीं पता। ठीक है। तो विक्टोरिया के गवर्नर को लगता होगा कि मैं सेंटर में हूँ, कि मैं विक्टोरिया चला रहा हूँ। इजंट इट? तो पर हमें क्या है, हम उल्टा उसको ग्लोरीफाई, उसको प्लीज तो क्या करना है हमें? हम उसको उल्टा गालियां, क्रिटिसाइज करते होंगे लोग, है ना। स्कॉट मॉरिसन था पहले, अब तो मुझे नहीं पता कौन है। स्कॉट मॉरिसन था, कौन था? आई डोंट नो। राइट। तो कंट्री के सेंटर में वो है, उसको लगता है वो है। पर क्या जो कंट्री के जो रेजिडेंट्स हैं उनको लगता है? नहीं लगता। उनको थोड़ा ना लगता कि वो है कि नहीं है। सो इससे हमें क्या, इससे क्या समझ में आ रहा है? अब उसमें कुंती महारानी क्या बोल रही है कि गंगा, गंगा जैसे
कृष्णा की तरफ गंगा जैसे समुद्र की तरफ जा रही है, ऐसे ही हमें सिर्फ कृष्णा की तरफ जाना है। और ऑन द वे, ऑन द वे गंगा क्या कर रही है? फर्टिलाइज कर रही है, सारी लैंड्स को फर्टिलाइज कर रही है, आसपास सिविलाइजेशंस हो रही हैं पूरी पूरी, नदी के किनारे, गंगा के किनारे, इजंट इट? वो सबकी सर्विस करती हुई, सबको देती हुई, वो कृष्णा के पास जा रही है। सेम वे हमें करना चाहिए। हमें सबको, फैमिली मेंबर्स को सर्व करते हुए कृष्णा की ओर जाना है। उससे क्या होगा? हमारी अफेक्शन नहीं होगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो कॉल्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी होती जाएंगी, बट विदाउट टेकिंग माई सेल्फ इन द सेंटर। मैं सर्व उनको इसलिए नहीं कर रहा हूं अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कि कल को वो मुझे भी सर्व करें। नो, मैं उनको सर्व इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दे आर डिवोटीज, दे आर रिलेटेड टू कृष्णा, राइट? दे आर गिवन टू मी बाय कृष्णा, दैट इज वाई आई एम डूइंग इट। ठीक है? सो और एवरीथिंग। प्रभु बताओ। अभी भी मुझे एक डाउट है। जैसे प्रभु आपने कुंती महारानी का एग्जाम्पल लिया, प्रभु जब वो पांडु महाराज की डेथ हो रही थी, तो हम्म। जो उनकी पांडु महाराज की जो दूसरी वाइफ थी, उसने बोला कि मैं भी अपने आप को वो कर लेती हूँ, हम्म। जो भी प्रभु उस टर्मिनोलॉजी में बोलते सती, हैं। हाँ। एंड कुंती महारानी ने उस टाइम भी, हाँ प्रभु, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी बच्चों बिल्कुल। के लिए। बिल्कुल। प्रभु, अगर वो भी जाती तो प्रभु वो भी धाम ही जाती ना भगवान के, बोथ वे से। लेकिन प्रभु मतलब मेरे को ये डाउट रहता है कि अगर, क्या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अगर हम सोच रहे हैं, तो क्या हम्म। वो गलत सोच रहे हैं? और नहीं, क्या चले जाना चाहिए? नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचना इज नॉट गलत, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस तरह से निभाना कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, दैट इज रॉन्ग। आई आई एम, डोंट कीप योर सेल्फ इन द सेंटर, रादर जैसे मैंने बताया कि गंगा करती जा रही है सर्व, सिर्फ सर्व करना है, वापस में कुछ नहीं लेना, राइट? हमें अपनी डिजायर्स नहीं उनसे सेटिस्फाई करवानी है। अगर हम अपनी डिजायर के लिए, ये मेरी डिजायर है कि मेरा बच्चा बड़ा होके डॉक्टर बन जाए, देन इट इज रॉन्ग। वो क्या है? सेंस ग्रेटिफिकेशन है। कल को ना कि मैं कॉलर उठा के बोल सकूं कि हाँ देखो, मैंने अपने बच्चे को ग्रामर स्कूल में पढ़ाया और वो बच्चा देखो वो बन गया। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे पे एफर्ट लगा रहे हो, देन वो क्या होने वाला है? हार्ट अटैक होने वाला है। उस बंदे ने यही किया, उस बंदे ने उसको बेस्ट प्लेयर बना दिया विक्टोरिया की, बट दीज मटेरियल रिलेशंस आर नॉट, यू आर नॉट गोइंग टू गेट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम देम। ये यहीं से हमने स्टार्ट किया था ना। तो दिस इज कर्म मिश्र भक्ति। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऊपर रख रहे हैं और कृष्णा को नीचे रख रहे हैं, देन इट इज कर्म मिश्र भक्ति, राइट? वेयर एज अगर हम कर्म योगा, इसको कर्म मिश्र भक्ति से कर्म योगा पे लाना है, राइट? कि हम कर्म कर रहे हैं और हमें रिजल्ट्स की कोई टेंशन नहीं है, हम कर्म किस लिए कर रहे हैं? जस्ट फॉर कृष्णा। और हम रिपोर्ट, जैसे वो नहीं होता कस्टमर केयर में, ऑल दीज कॉल्स विल बी, योर कॉल विल बी रिकॉर्डेड फॉर ट्रेनिंग एंड पर्पजेज, फॉर ट्रेनिंग एंड व्हाट पर्पजेज, मैं भूल गया। क्वालिटी पर्पसेस। क्वालिटी, क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पजेज, राइट? सो सेम वे, हमें वट एवर जो भी हम कर रहे हैं ना, हमें शाम को अपना स्टेटस रिपोर्टिंग देनी चाहिए कृष्णा को। कृष्णा, आज मैंने अपने पति के लिए ये किया, आज मैंने अपने बच्चों के लिए ये किया। उस वे में क्या होगा? कृष्णा जो बॉस हैं बैठे हुए हैं, हम उनको दे रहे हैं कि कृष्णा दिस इज, आई हैव डन इट फॉर यू। हमारा जो पे चेक आना है ना, हमारा जो पे चेक आना है वो कृष्णा से आना है। अब हमें क्या लगता है कि कृष्णा से तो पे चेक आता नहीं है, लेट हो रहा है ना, टाइम लगता है, क्योंकि एकदम से तो रेसिप्रोकेशन होती नहीं, क्योंकि हमारी कंटेमिनेटेड है, ज्ञान कर्म अनावृतम। कंटेमिनेटेड भक्ति कर रहे हैं, मिश्र भक्ति कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स तो आएंगे नहीं, सीधी सी बात है। और हमें क्या होता है कि रिजल्ट्स तो हमें चाहिए, कृष्णा भक्ति करिए, लाओ रिजल्ट्स चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं, कहते हैं, वो एग्जांपल देते हैं, कहते हैं अब एक लेडी की, मतलब एक बंदे से शादी होती है, और वो बोलती है कि मुझे बच्चा दो, नेक्स्ट डे बोल रही है मुझे बच्चा दे दो। अब हस्बैंड बोल रहा है कि यार नेक्स्ट डे कैसे, इट टेक्स 9 मंथ्स, राइट? तो 9 मंथ्स वेट तो करो। वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, अगर 9 मंथ्स वेट करनी है तो मैं कहीं किसी और के पास जाती हूँ ना, या मैं किसी और का बच्चा किडनैप कर लाती हूँ, इजंट इट? तो हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि आज आज करिए, हमने भक्ति आज कर ली, चलो अब रिजल्ट्स दो, रेसिप्रोकेट करो। दिस इज हाउ कृष्णा, हम पे ट्रस्ट तो करो। ट्रस्ट कैसे कर ले भाई तुम पे वो? हम काम ही नहीं करते ट्रस्ट वाले।
राइट। तो हमें कृष्णा को कैसे पता चलेगा, इजंट इट? सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो जब हम कृष्णा को रिपोर्ट करेंगे, कृष्णा ये किया, मैंने ये किया है, और ये मैंने सब कुछ आपके लिए किया है, आपके बच्चे के लिए किया है, देन ही विल, दैट इज द प्योर भक्ति। डज दैट मेक सेंस माता जी? हाँ प्रभु। प्रभु थोड़ा। ये पॉइंट तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ हाँ, हमें अपने काम की रिपोर्ट करनी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे। हाँ। और हमें सिर्फ सिर्फ जो हमें रेसिप्रोकेशन चाहिए ना, और ये भी हमें डिटर्मिनेशन बना लेनी चाहिए कि जो भी हमें रेसिप्रोकेशन चाहिए ना, वो सिर्फ कृष्णा से चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। आई डोंट वांट। हम क्या करते हैं, कृष्णा से नहीं मिली तो चल यार फ्रेंड से ले लो, क्योंकि वो चाहिए सेटिस्फेक्शन, नहीं खाली भक्ति करके सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। और हमें कई लेक्चर्स में हमने सुना भी है, हाँ हाँ भाई चलो नहीं मिलती, पर दिस इज, मैंने पहले ही क्लास स्टार्ट होने से पहले ही कहा था कि ये दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट टेक। हमें क्या लगता है चल यार यहाँ से नहीं मिली, चलो थोड़ा तो चाहिए ना, अब सर्वाइवल है, मटेरियल वर्ल्ड में सर्वाइव करना है, तो चाहिए ना इधर उधर से ले लो। मैंने ये क्वेश्चन मैंने विष्णु प्रेषर प्रभु से भी पूछा था। तो मैंने कहा प्रभु वहां से रेसिप्रोकेशन नहीं होती तो क्या है, कहते कोई बात नहीं, वहां से नहीं होती तो इधर उधर से बाल्टी, जब तक वहां से नहीं आ रही तब तक इधर उधर से भर लो, विच इज फाइन एज वेल, बट फॉर हाउ लॉन्ग? वो हमें ये दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हमें रेसिप्रोकेशन चाहिए तो सिर्फ कृष्णा से चाहिए, दैट्स इट। और कहीं से नहीं चाहिए। बट एट द सेम टाइम ऑन द वे आई विल कीप सर्विंग, आई विल कीप सर्विंग, आई विल नॉट, जैसे आपने बोला ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई विल नॉट give up my responsibilities. I'll keep serving whosoever comes in my way, be it my family, my relatives, my community, whatever it is, right? तो ये बात हमारे दिमाग तो में प्रभु। फिट हो जानी चाहिए कि नो वन कैन सेटिस्फाई अस, ना हमारी फैमिली, ना हमारे फ्रेंड्स, ना रिलेटिव्स, कोई हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकता। और हम क्या करते हैं, कृष्णा को छोड़ देते हैं हम किसी और से सेटिस्फाई होने के चक्कर में। किसी और से तो सेटिस्फाई होते नहीं है, उल्टा जो कृष्णा के साथ कनेक्शन चल रहा होता है उसका अलग से नुकसान हो जाता है। हाँ जी माता जी। तो प्रभु मतलब अगर चॉइस हो तो हमें चले जाना चाहिए, हाँ। भाई नॉट, प्रहलाद महाराज के साथ अच्छा। क्या हुआ था? प्रहलाद महाराज के साथ क्या हुआ था जब वो सब कुछ हो गया? तो प्रहलाद महाराज वॉज हैप्पी, उनके फादर जो डिमोनिक थे वो चले गए, बट एट द सेम टाइम ही वांटेड टू स्पिरिचुअली एलिवेट। तो उन्होंने क्या बोला जब जाते हुए कि नरसिंह देव ये मेरे पापा, कहते कहते क्या बात कर रहा है, एक पापा, कहते तेरे 7 पापा और 7 पापा आने वाले, वो सारे दे आर डिलीवर्ड। सो अगर एक प्योर भक्त बन जाए तो आगे पीछे तो सब सब भक्ति भक्त हैं। प्रभुपाद ने अपने परपोर्ट में लिखा हुआ है भागवतम में कि आई एम वेटिंग कि शायद इस कॉन्ग्रिगेशन में कोई प्योर डिवोटी आ जाए जो कि मुझे ले जाए, दैट इज ऑन ह्यूमिलिटी, उस लाइन को गलत मत लेना, बट दिस इज व्हाट हिज मूड इज, कि कोई एक प्योर डिवोटी अगर हो जाए वो सबको आगे पीछे सबको ले जाएगा। सो रेस्ट एश्योर्ड, हमें वही तो फेथ नहीं होता ना। हमें लगता है कि ये जो हमारे हाथ में है ये लॉटरी की टिकट है, ये चेक नहीं है, वो 1 मिलियन का चेक होगा और 1 मिलियन की लॉटरी की टिकट है, किसको पकड़ोगे? 1 मिलियन के चेक को पकड़ोगे ना। हमें ये लगता है कि ये जो बोल रहे हैं जो फेथ नहीं है ना, हमें ये लगता है कि ये लॉटरी की टिकट है, पता नहीं निकलेगी नहीं निकलेगी, दैट इज द प्रॉब्लम। बट कृष्णा बोल चुके हैं माई एंड डिवोशन नेवर पेरिश। हाँ जी। एंड प्रभु शायद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं वापस उसी पॉइंट पे आती हूँ, लाइक अगर मुझे अभी बोले जाने के लिए तो मेरे माइंड में सबसे पहले मेरे बच्चे आएंगे। बच्चे। एंड हाँ। प्रभु आई थिंक, हाँ एंड प्रभु आई थिंक आई एम नॉट ऑन दैट लेवल, भक्ति के उस लेवल पे भी नहीं है नो कि वन। हम उसको छोड़ के उधर जाए। यस प्रभु, तो इसीलिए शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है कि हमारा शायद वो लेवल ही नहीं है भक्ति नहीं का। है नहीं है नहीं साथ है। में बोल देना कि प्रभु जी सबको सबको ले लो साथ में। वो बोला, वो बोला प्रहलाद महाराज ने बोला एक्चुअली, और उन्होंने बोला कि डन, बट हमें अब वो उस स्टोरी पे फेथ ही नहीं है। मैंने माता जी आपकी बात नहीं, एवरीवन, मैंने पहले ही बोला था, इस यहाँ पर कोई भी जो बैठा है किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर अभी बेल बजे, डोरबेल बजे और आए नारायण आए वो कहें आओ, कोई भी नहीं आ पाएगा, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं आ पाएगा। सो मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये नहीं कि मैं जा पाऊंगा, मैं भी नहीं जा पाऊंगा, बट वट ये क्लास से क्या हम निकाल रहे हैं कि एटलीस्ट हमारा फेथ और थोड़ा स्ट्रांग हो, थोड़ी कम कर्म मिश्र भक्ति जो कर रहे हैं या ज्ञान मिश्र भक्ति कर रहे हैं उसमें जो मिश्रण जो है धीरे धीरे वो
भक्ति का बढ़ाना है और कर्म का कम करना है, ज्ञान का कम करना है। अभी 80% कर्म है, 20% भक्ति है, और हमें लग रहा है हम भक्ति कर रहे हैं। हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे जैसे कि एक्सपेक्टेड हैं, जैसा कि बुक्स में लिखा है। क्योंकि वो बुक्स में क्या लिखा है, भक्ति करने के। हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, हम मिश्र भक्ति कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? एग्री प्रभु, 100% एग्री कि हम, हमारा 20% ही भक्ति है और वो भी मिश्रित भक्ति है 20% है। कंप्लीटली एग्री प्रभु। हाँ, तो हमें जो वो जो सेटिस्फेक्शन है ना, जो और लोगों से चाहिए, बच्चे से, पति से, पत्नी से, वो 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 दैट इज द प्रॉब्लम। मान लो अब मेरी जॉब लगी है और मेरी जॉब में सैलरी मेरी कम है, तो मैं क्या करूंगा कि यार मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक और जॉब कर लेता हूँ। तो वहां से मेरा वो जो जो डेफिसिट है, सैलरी जो कम जिसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, दूसरी जॉब से मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, मैं दूसरी जॉब करने लग गया। दूसरी जॉब से पैसा तो आ गया जितना थोड़ा बहुत जो आना था, और पर क्या हो गया, जो ये वाला बॉस था, जो मेरी मेन जॉब थी, वहां पर मैं काम नहीं कर पाया, वहां पर थका हुआ, वहां पर सो रहा हूँ। तो वो वाला बॉस ही फायर कर देगा, कहेगा यार तू जा वही कर ले जाके। इजंट इट? सो सेम चीज ही हो रही है हमारे साथ। तो हमें जो है, हमें जो पेचेक लेना है वो कृष्णा से ही लेना है, हमें इधर उधर से नहीं लेना है। ठीक है, हमें सेटिस्फेक्शन इधर उधर से नहीं लेनी है, सिर्फ कृष्णा से ही लेनी है। और बट एट द सेम टाइम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, वो जैसे गेंजेस, अप्रोप्रिएट वर्स है ये आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए, कि जैसे गेंजेस वो बोल रही है कि आपकी तरफ पूरी वेग से आ रही है, एट द सेम टाइम वो सिविलाइजेशंस खड़ी कर रही है साथ में, फर्टिलाइज कर रही है लैंड को। सेम वे हमें आसपास वाले लोगों को सर्व करते हुए, अपने आप को सेंटर में ना रखते हुए ये काम करना है। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का सुबह बोलते हैं ना वो इसके गुरु पूजा से पहले, कि हाँ दिस इस प्रभु ने इतने बुक्स के इतने बुक पॉइंट, इतने बुक पॉइंट। वो क्यों बोलते हैं? वो कृष्णा और प्रभुपाद के सामने खड़े होकर बोलते हैं वो, राइट, टू टेल कि जितनी भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ये आपके लिए हुई है, कृष्णा, प्रभुपाद, गुरु और कृष्णा के लिए हुई है। ये आपके वो उसके लिए नहीं हुई है कि आप और लोगों में आज तो भाई मैं जीत गया। नो। और अगर आपके मन में ऐसा है कि मैंने हाईएस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन करी है, तो वेट फॉर सम टाइम, वेरी सून यू आर गना गेट फ्रस्ट्रेटेड, डिस्गस्टेड बाय दोज पीपल, राइट। तो एक बड़ी अच्छी इसमें एग्जांपल आती। हाँ जी, अगर कुछ बोल रहा हो? हाँ जी, आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। तो एक बड़ा अच्छा भगवान ने क्रिएचर बनाया है, कुकू उसको बोलते हैं, पाइड क्रेस्टेड कुकू, चटक। वो पता है क्या करता है? वो जितना भी थर्स्टी हो, वो पानी नहीं पीता, वो मर जाएगा पानी नहीं पिएगा, वो सिर्फ जो क्लाउड से जो रेन वाटर आता है ना, वही पीता है। इतना स्ट्रेंज बर्ड है वो। सो सेम वे वो उससे एग्जांपल देते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए कि कृष्णा रेसिप्रोकेशन चाहिए तो तुमसे चाहिए, नहीं तो और किसी के पास नहीं जाऊंगा मैं रेसिप्रोकेशन के लिए, बट आई कीप ऑन सर्विंग देम। राइट, आई थिंक विल स्टॉप हियर एंड विल सी इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स। दक्षा माता जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? हाँ हाँ जी प्रभु, बोलिए। तो जी आपने वो जो पांच बताए ना, हाँ हाँ पांच, हाँ। वो एक बार रिपीट कर दीजिए ना। हाँ, एक तो बॉडी से अटैचमेंट प्रभु, दूसरा अटैचमेंट है अपने पोजेशंस के साथ, लैंड और वो सब है ना। तीसरा पोजेशन है अपने ये जो पॉम्पस रिचुअल्स हम करते हैं, ठीक है, ये कर्मकांड वाला जो सेक्शन था, ठीक है, उस उससे अटैचमेंट। एंड देन वी हैव अटैचमेंट फ्रॉम, कहाँ गया, कहीं लिखा हुआ था मैंने, मैं खुद ही भूल गया हूँ। हाँ, नॉलेज, अपनी नॉलेज के साथ अटैचमेंट, और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ अटैचमेंट। possessions, family members, body, knowledge and rituals। हाँ जी माता जी। Hare Krishna Prabhu. I just wanted to check if this philosophy, not philosophy, like kind of mentality that I have, is it a right thing, right attitude to have, or right mentality to have? So sometimes, when I'm planning to take leaves from work, I think of myself, एक दिन नहीं जाऊंगी तो बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा या डिपार्टमेंट बंद नहीं हो जाएगा. Same way I apply with my family. अगर in case if Krishna comes and I go,
My family will be looked after by Krishna. I don't have to worry about it. So हम्म। this mentality, is it good to have, or there is another angle or another way to look at it? परफेक्ट। प्रभुपाद को किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने बोला था कि आप आपने अपने बच्चे छोड़ दिए ऐसे, उन्होंने भी संन्यास, आफ्टर ऑल ही टुक संन्यास, राइट। सो ही सेड कि यार मैं तो चला गया पर लोग मर जाते हैं, लोग कहते तब नहीं फैमिली चलती। एक बंदे के दुनिया नहीं रुकती किसी एक बंदे के चले जाने पे। दिस इज नॉट, आई एम नॉट सेइंग, प्रभुपाद सेड दैट कि ऐसा हमें लगता है कि हम, पर हमें वो जो संन्यास लेने की बात है उसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होनी चाहिए टुवर्ड्स कृष्णा, राइट। एक एक रीजन होना चाहिए, पर जब तक हम उस, जैसे कि नेहा माता जी ने कहा ना, हमारी अभी वो स्टेज नहीं है, जैसे जब तक हम वो, और उसकी प्रैक्टिस वी कैन डू। गृहस्थ आश्रम में बोलते हैं एंटर करते ही हमें उसका एग्जिट कैसे करना है, वो चीज की प्लानिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम में हमें भक्ति, चैंटिंग, तभी इतना कुछ हमने डाल दिया है कि, और अभी इतना सारा हमारा बैकलॉग पड़ा है। पूरी भागवतम पढ़ी है, चैतन्य चरितमृत पढ़ी है, और इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, बहुत कुछ और करने वाला है, डीटी वर्शिप करने वाली है, इतना सारा बैकलॉग है। तो हमारे पास रिटायरमेंट के बाद बहुत काम है करने के लिए, राइट। तो वो चीज हमें देखनी है कि जब हम रिटायरमेंट का सोच रहे हैं या संन्यास का सोच रहे हैं, तो क्या हमारी, जब हम बाय चांस हमारे पास अगर 5 या 10 मिनट दिन में फ्री होते हैं, मतलब जी आपके पास तो अब नहीं होंगे अभी एट दिस मोमेंट, ठीक है, बट मान लो 5 साल 10 साल बाद आपके पास अगर 5 मिनट 10 मिनट हैं, तो वो क्या 5 10 मिनट में आपका हाथ रिमोट की तरफ जाता है या मोबाइल की तरफ जाता है या भागवतम की बुक की तरफ जाता है? अगर वो भागवतम की बुक की तरफ जा रहा है, staying in the Grihast ashram itself, in that busy schedule, if you get free time and you are reading Bhagavatam, then yes, you are eligible for retirement, for sannyas, for going into the Vanprasth ashram. But if not, तब तक थपेड़े खाते रहो गृहस्थ आश्रम के और साथ में प्रैक्टिस करते रहो। बट हाँ, ये एटीट्यूड इज फाइन कि हाँ कृष्णा, इतना फेथ हम पे होना, हमें होना चाहिए कि कृष्णा विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ माई फैमिली मेंबर्स एंड everyone, right? So I should gladly. One more angle, I usually also have one more angle, is whatever I have got is Krishna's only. Like you said earlier, the baby that I've received is Krishna's baby, not my baby. So he'll definitely look after him, right? हाँ, he will, हमें लगता है, वही तो मैं, जो सेंटर में मैंने अपने आप को रखा हुआ है वो प्रॉब्लम है। और सेंटर में रख के मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सर्व तो अपनी फैमिली मेंबर्स को कर रहा हूँ, पर सेंटर में मैं हूँ, और सर्व के एवज में मुझे वो सटल है, वो हमें लगता नहीं है, हमें तो ये लगता है हम उसको सर्व कर रहे हैं, बट इन रिटर्न व्हाट वी वांट इज, उसका सिंपल सा टेस्ट है कि हम सर्विस कर रहे हैं, कि हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहे हैं। इसका एक सिंपल सा टेस्ट करते हैं, ठीक है। मैंने अपनी वाइफ की सर्विस करी, ठीक है, उसको किया, और उसके बाद उसने कुछ मेरे को बोल दिया, उसने मेरे को गाली मार दी, ठीक है, उसने गाली मारी, तो क्या मैं फ्रस्ट्रेट हुआ, क्या मैं एंग्री हुआ, क्या मैंने गिव अप कर दिया कि अच्छा तू तो गाली मारी, मैं नहीं करता तेरा काम? अगर ये सब चीजें मैं कर रहा हूं ना, अगर मैं वापस उसका काम छोड़ दिया, मैंने काम बीच में छोड़ दिया, ले मैं नहीं करता, या मैं बोल रहा हूँ, या मैं एंगर में आ रहा हूँ, या मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, सिंपल साइन, सिंपल, बहुत सिंपल एविडेंस है कि मैं जो भी कर रहा था अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहा था, मैं उसको सर्व करने के लिए नहीं कर रहा था, सर्विंग मूड नहीं था मेरा, राइट। और वो हम सबके साथ है, हमें लगता है कि वो फैमिली, दिस इज व्हाट कुंती महारानी सिंह, कि वो फैमिली टाइज जो हैं वो ऑन द लेवल ऑफ मटेरियल, वो मटेरियल कनेक्शन के लेवल पे हैं, इसलिए उनको कट करना इज बेटर, and to serve them selflessly and serve them as a devotee of Krishna, then that connection is fine. Does that make sense? प्रभु जी इसके ऊपर मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे मैं टेंपल में सर्विस के लिए जाता हूँ ना, मेरी आवाज सही से आ रही है ना? आ रही है। तो मैं जैसे टेंपल में सर्विस के लिए जाता हूँ ना, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जाके जितना भी कचरा होता है वो सारा उठा के मैं सही करता हूँ, फिर काम चालू करता हूँ। वो मेरे पहले से डे वन से मेरे ऐसी प्रैक्टिस है। तो मैं जब भी जाता हूँ, अगर बहुत किसी ने सारे बर्तन रख दिए होते हैं ना, तो फिर मैं बोलना स्टार्ट कर देता हूँ कि यार पब्लिक कैसी है कि सर्विस करती आती है और वो चॉपर भी साफ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, ऐसा छोड़ के आके चले जाते। तो मैं एक प्रभु जी से बात कर रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक
जो टेम्पल में एक पुजारी है, एक प्रभु जी, मैं उनका नाम भूल गया। भक्ता वो प्रभु, भक्तिमान प्रभु। बहुत सारे एक एक प्रभु जी है, मुझे वो उनका अच्छा। नाम नहीं पता है। हाँ तो हाँ। उन्होंने वो सुन लिया। वो मेरे पास आए, बोलते हैं कि तुम चैंटिंग करते हो? मैंने बोला हाँ चैंटिंग करता हूँ। क्या मांग चैंटिंग का मतलब क्या है? क्या मांगते क्या हो? एक बाजू बोलते हो मुझे सेवा सर्विस दो, और यहाँ पे सर्विस मिल रही है तो कंप्लेन कर रहे हो कि सर चले जाते। तब से मैं कभी भी जाता हूँ ना, तो मुझे वो हर बार उनकी बात क्लिक होती है कि नहीं, कुछ नहीं बोलना है, करना है, कुछ बोलना नहीं है। करेक्ट। करेक्ट। तो ये हम एक्चुअली प्रभु, पता है क्या है, आपके साथ नहीं, ये सबके साथ है। मैं भी जब जाता हूँ ना किचन में, तो द मोमेंट वो सर्विस करने, और मैं तो जाता भी सुबह हूँ, मतलब अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे मैं किचन, 6:30 बजे किचन के अंदर होता हूँ। तो उसमें मूड ऑफ गुडनेस, सुबह अच्छा सात्विक माहौल होता है। तब भी वी आर, द मोमेंट वी टच नाइफ एंड ऑल दोस, वो मोड ऑफ पैशन आ जाता है अपने आप। और भक्ति बोलते हैं कि मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस में नहीं करनी चाहिए, हमेशा मोड ऑफ गुडनेस में करनी चाहिए। हरे साथ में वो जस्वी प्रभु होते हैं, वो हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा वो साथ में मंत्र बोलते हुए ही करते हैं, ताकि कोई और फालतू का थॉट आए ही ना माइंड में। सो दिस शुड बी द एटीट्यूड और मोड ऑफ गुडनेस, राइट। अच्छा है, बट एटलीस्ट यू रिकॉग्नाइज, राइट, दैट्स द फर्स्ट स्टेप, एटलीस्ट यू रिकॉग्नाइज कि व्हाई इट इज हैपनिंग। देन इफ यू रिकॉग्नाइज, देन यू हैव रिमोर्स एंड देन यू कैन रेक्टिफाई। नाइस, गुड। ऑलराइट देन, विल स्टॉप हियर। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, स्वामी भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी, thank you everyone.